આપણે જોતા આવ્યા છે કે ક્રૂઝ ડ્રગ્સ કેસનો મામલો જ્યારથી સામે આવ્યો છે ત્યારબાદ રોજ નવા વળાંક સામે આવતા જઈ રહ્યા છે અને હવે તો એનસીપી પણ ક્યાં કહી શકાય કે આ આખી લડાઈમાં ઉતરી પડ્યું છે। એનસીપી વર્સિસ એનસીબીની જાણે આ જંગ થઈ ગઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે। આ તમામની વચ્ચે જ્યારે પણ કોઈ કાર્યવાહી કરી રહ્યું હોય કોઈ પણ મોટી વ્યક્તિ પર ત્યારે તેના પર અનેક પ્રકારના સવાલ થાય છે। ત્યારે સવાલ અહીંયા સૌથી મોટો એ છે કે સમીર વાનખેડે જે આખી તપાસ ચલાવી અને જે મહેનત કરી શું એમાં કંઈ ખોટું કર્યું? દેશ તો જાણે છે ચાહે છે કે તે તેની જોડે ઊભો રહે, પરંતુ એનસીપીને ક્યાં વાંધો પડ્યો એ સમજવા જેવું સૌથી મોટું એક અહીંયા કારણ સામે આવી રહ્યું છે। કારણ કે એનસીપીની જો વાત કરવામાં આવે તો એનસીપી સતત અહીંયા કોઈ ને કોઈ રીતે સમીર વાનખેડેને ટાર્ગેટ કરી રહી છે। જે રીતે નવાબ મલિકે એવું કહ્યું છે કે દુબઈ અને માલદીવમાં જ્યારે કોરોનાનો લોકડાઉનનો પિરિયડ ચાલતો હતો ત્યારે એનસીબી વાળા ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમામ ઉદ્યોગપતિઓ ક્યાંક ને ક્યાંક ખાસ કરીને એ તમામ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની હસ્તીઓને ત્યાં લઈ જતા હતા અને તેમની પાસે અનેક રીતે વસૂલી પણ કરાવતા હતા। માત્ર એટલું જ નહીં, સાથે સાથે કોઈને કોઈ રીતે આર્યન ખાનને પકડવાને લઈને પણ તેને આરોપ મૂક્યો છે કે તેમાં પણ તેની ખોટી સંડોવણી થઈ ગઈ છે। હવે જ્યારે સ્પષ્ટ રીતે કોઈ કબૂલાત કરી લે પછી ખોટી સંડોવણી કેવી રીતે થઈ શકે? શું કામ સમીર વાનખેડેની પાછળ એનસીપી હાથ ધોઈને પડી ગયું છે? આ જંગ એનસીપી ને એનસીબીની કેવી રીતે હોઈ શકે? તમામ લીગલ ફોર્માલિટીઝ, તમામ ટેકનોલોજી અને તમામ ટેકનિકલ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને લોને આધીન થઈને જ્યારે તપાસ હાથ ધરાતી હોય આ એક એવી સંસ્થા છે કે જેમાં ઉપર નીચે કશું નથી થતું, સ્પષ્ટ રીતે તપાસ થતી હોય અને લોના આધારે તમામ વસ્તુ ખુલ્લેઆમ થતી હોય છે। એ તપાસ સ્પષ્ટ રીતે થઈ રહી છે તો એમના પર સવાલ કેમ ઉઠાવવાનો? કારણ કે શાહરૂખ ખાનનો છોકરો છે એટલા માટે? કારણ કે આ તપાસમાં મોટી એક સેલિબ્રિટીનો દીકરો ફસાયો છે એટલા માટે? શું કામ વારંવાર માલદીવ અને દુબઈનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે જ્યારે સમીર વાનખેડે તો સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે કે તેઓ દુબઈમાં ગયા જ નહોતા? હવે જ્યારે કોઈ ગયું જ ન હોય તો પછી તેના પર સવાલ કેવી રીતે ઊભો કરી શકો કે તમે દુબઈમાં જઈને આ કર્યું ને તે કર્યું? આ તમામની વચ્ચે પ્રદીપ ભંડારીએ સ્પષ્ટતા કરી અને જણાવ્યું કે સમીર વાનખેડેની શું છે પ્રતિક્રિયા, સમીર વાનખેડે શું કહી રહ્યા છે। એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ સમીર વાનખેડેનો પ્રદીપ ભંડારી સાથેનો આજે જોઈશું। સાથે સાથે તેમની બહેન પણ એટલે કે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને પ્રદીપ ભંડારીના શોમાં જોડાઈ અને તેને પણ સ્પષ્ટતા કરી કે અમે પણ કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને, કારણ કે તે પોતે પણ એક લોયર છે, આગળ તમામ કાર્યવાહી કરીશું। ત્યારે જોવાનું રહેશે કે રાજકારણ કોઈને કોઈ રીતે આ તમામ કાર્યવાહી પર ભારે પડી રહ્યું છે। રાજકારણ શું આ તમામ સેલિબ્રિટીઓને બચાવી રહ્યું છે? ચલો આ બધી વસ્તુ આ ડિબેટની અંદર જોઈશું, પરંતુ સાથે સાથે શરૂઆત કરીશું પ્રદીપ ભંડારીનો એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ સમીર वानखेड़े। कौन है? जनता। लोकतंत्र में सबसे मौन कौन है? जनता। हर सरकार का मालिक कौन है? जनता। फिर भी सबसे बेचारा कौन है? जनता। अब करना होगा हर फरियाद का सामना। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, इस देश को यह निर्धारित करना है कि क्या एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो न्याय संगत रूप से अपना काम कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक दबाव और राजनीतिक षड्यंत्र उनके ऊपर हावी होगा या वो न्याय संगत उनको काम करने दिया जाएगा। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए एक एंटायर ड्रग रैकेट के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और इस पूरी कार्रवाई को स्पीयरहेड कर रहे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, उनकी टीम के साथ में समीर वानखेड़े। पर पिछले कुछ दिनों से नवाब मलिक और एनसीबी उन पर निजी आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार पर निजी आरोप लगा रहे हैं। देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ में है। इस वक्त समीर वानखेड़े कई मीडिया अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पर समीर वानखेड़े ने मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव मेरे साथ इंडिया न्यूज के साथ में बातचीत करी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करा और मैं आपके सामने आज समीर वानखेड़े का पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाना चाहता हूं। अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप का जवाब समीर वानखेड़े खुद दे रहे हैं। जरा समीर वानखेड़े का लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पे। जोनल डायरेक्टर ऑफ दी एनसीबी समीर वानखेड़े जी, प्रदीप भंडारी बोल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवाब मलिक ने आपको कॉन्स्टेंटली, आपको और आपकी फैमिली को अटैक किया है जब से आपने ये प्रोब ड्रग के खिलाफ करी है। आपको क्यों लगता है कि ये जो एलिगेशंस आप पे नवाब मलिक लगाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए प्रदीप जी, ये जो एलिगेशन लगा मैं इसका घोर खंडन करता हूँ
ये एलिगेशंस कंप्लीटली बेबुनियाद है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं एलिगेशंस में। और ये जो मेरे फैमिली पे, मेरे मृत माता के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर और मेरे रिटायर्ड पिताजी के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और बहुत शर्मनाक बात है। जी दूसरी बात है जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं जो माननीय मंत्री हमारे के, मैं दुबई गया हूँ। मैं 2008 मेरी सर्विस, जब मैंने 2000 बैच का हूँ, मैं 2008 बैच का हूँ। मैं 2008 मेरे सर्विस में कभी भी मेरे लाइफ में दुबई नहीं गया हूँ। तो ऐसे आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरे आप प्रूफ तो कीजिए। कंप्लीटली झूठे आरोप है ये। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कंप्लीटली झूठे आरोप है। उन्होंने टर्म्स लाइक एक्सटॉर्शन आपके लिए इस्तेमाल की है। क्या ये ऑनेस्टली लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करने के कारण आप पे इस तरीके से अटैक हो रहा है? एक ऑनेस्ट ऑफिसर, इतना घिनौना शब्द, इतना गंदा क्रिमिनल शब्द, और वो भी वो इंसान के लिए जो सिर्फ अपनी देश की सेवा कर रहा है। एक्सटॉर्शन बहुत घटिया शब्द होता है, बहुत घिनौना शब्द होता है। उसका मतलब जानते हैं वो एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? आप कोई एक एविडेंस दो, आप कोई न्यायालय के सामने कोई चीज रखिए। आप सिर्फ बोलने के लिए, पर्सनल किसका इमेज खराब करने के लिए आप इतने घिनौने शब्द इस्तेमाल करोगे, और वो भी मेरे पर नहीं, मेरी बहन के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर। कहाँ का ये न्याय है ये? समीर जी, पूरा देश आपके साथ में है और पूरा देश जिस ऑनेस्टली जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, पूरा देश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, नवाब मलिक, एक और क्वेश्चन है मेरा आप पे, क्योंकि नवाब मलिक जी हमेशा से एलिगेशन लगा रहे हैं। नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर अपने जॉब को छोड़ देंगे, ऐसा तक वो क्लेम करने लग गए। मैं उनको आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जी, यानी अगर क्राइम खत्म करना, ड्रग क्राइम खत्म करना, उसके लिए क्या मैं जेल जाना चाहता? जेल मुझे शिक्षा होना चाहिए, मेरी सर्विस जाना चाहिए देश सेवा करने के लिए। ये सही है? ये सही बात है? ये जस्ट अपनी ड्यूटी करने के लिए? समीर जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने काम को करते रहिए, न्यायपूर्वक करते रहिए। मैं बस लास्ट एक क्वेश्चन, समीर जी, ये मेरा नहीं, पब्लिक क्वेश्चन पूछना चाहती है कि जिस तरीके से न्याय संगत आप काम कर रहे हो, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, कि क्या और जो भी लोग, समीर जी, जो भी नाम आगे आएंगे, आप बिल्कुल निसंकोच करके बिना डरे, भले कोई भी बॉलीवुड का व्यक्ति उसके तरफ जाएंगे, या कोई भी होगा? हम लोग एनसीबी इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ कॉम्पिटेंट एजेंसी। हम लोग टेक्निकली और प्रोफेशनल माध्यम के द्वारा काम करते हैं। कोई भी पक्षपात या प्रेशर में काम नहीं करते। जो कोई भी आएगा सामने, जो कोई भी लॉ इवेटर है, डीपीएस एक्ट का वायोलेटर है, हम उसके ऊपर एक्शन। मेरे साथ आप समीर वानखेड़े जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मेरे साथ लाइव जुड़ रहे थे। समीर वानखेड़े ने, इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, पर सबसे पहले लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तीन बातें सामने आई। एक कि समीर वानखेड़े ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो एक भी बार अपनी सर्विस ज्वाइन करने के बाद दुबई नहीं गए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो न्याय संगत लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहे हैं। क्या कोई ऑफिसर जिसको लॉ ऑफ द लैंड को वो फॉलो कर रहा है, क्या उस पे इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए? और तीसरी बात, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बॉलीवुड के और बड़े बड़े नाम जो है उसको भी एनसीबी बुला सकती, तो उन्होंने कहा कि एनसीबी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। एनसीबी एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से काम करेगी और काफी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, और उस हिसाब से जो भी वेडर होगा उसके पीछे एनसीबी जाएगी। मैं चाहता हूं एक बार वापस से समीर वानखेड़े, फर्स्ट एक्सक्लूसिव सबसे बड़ा इंटरव्यू किसी टीवी चैनल को दिया इंडिया न्यूज को, एक बार वापस से समीर वानखेड़े के इंटरव्यू को सुनाया जाए और उसके बाद हम मुकदमे को शुरू करेंगे। जोनल डायरेक्टर ऑफ दी एनसीबी समीर वानखेड़े जी, प्रदीप भंडारी बोल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवाब मलिक ने आपको कॉन्स्टेंटली, आपको और आपकी फैमिली को अटैक किया है जब से आपने ये प्रोब ड्रग के खिलाफ करी है। आपको क्यों लगता है कि ये जो एलिगेशंस आप पे नवाब मलिक लगाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए प्रदीप जी, ये जो एलिगेशंस लगा है, मैं इसका घोर खंडन करता हूँ। ये एलिगेशंस कंप्लीटली बेबुनियाद है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं एलिगेशंस में। और ये जो मेरे फैमिली पे, मेरे मृत माता के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर
और मेरे रिटायर्ड पिताजी के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और बहुत शर्मनाक बात है। जी दूसरी बात है जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं जो माननीय मंत्री हमारे के, मैं दुबई गया हूं, मैं 2008 मेरी सर्विस, जब मैंने 2000 बैच का हूं, मैं 2008 बैच का हूं, मैं 2008 मेरे सर्विस में कभी भी मेरे लाइफ में दुबई नहीं गया हूं। तो ऐसे आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, अरे आप प्रूफ तो कीजिए, कंप्लीटली झूठे आरोप है ये। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कंप्लीटली झूठे आरोप है। उन्होंने टर्म्स लाइक एक्सटॉर्शन आपके लिए इस्तेमाल की है। क्या ये ऑनेस्टली लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करने के कारण आप पे इस तरीके से अटैक हो रहा है? एक ऑनेस्ट ऑफिसर, इतना घिनौना शब्द, इतना गंदा क्रिमिनल शब्द, और वो भी वो इंसान के लिए जो सिर्फ अपनी देश की सेवा कर रहा है। एक्सटॉर्शन बहुत घटिया शब्द होता है, बहुत घिनौना शब्द होता है। उसका मतलब जानते हैं वो एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? आप कोई एक एविडेंस दो, आप कोई न्यायालय के सामने कोई चीज रखिए, आप सिर्फ बोलने के लिए, पर्सनल किसका इमेज खराब करने के लिए आप इतने घिनौने शब्द इस्तेमाल करोगे, और वो भी मेरे पर नहीं, मेरी बहन के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर। कहाँ का ये न्याय है ये? समीर जी, पूरा देश आपके साथ में है और पूरा देश जिस ऑनेस्टली जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, पूरा देश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, नवाब मलिक, एक और क्वेश्चन है मेरा आप पे, क्योंकि नवाब मलिक जी हमेशा से एलिगेशन लगा रहे हैं। नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर अपने जॉब को छोड़ देंगे, ऐसा तक वो क्लेम करने लग गए। मैं उनको आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यानी अगर क्राइम खत्म करना, ड्रग क्राइम खत्म करना, उसके लिए क्या मैं जेल जाना चाहता? जेल मुझे शिक्षा होना चाहिए, मेरी सर्विस जाना चाहिए देश सेवा करने के लिए? ये सही है? ये सही बात है? ये देश अपनी ड्यूटी करने के लिए? समीर जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने काम को करते रहिए, न्यायपूर्वक करते रहिए। मैं बस लास्ट एक क्वेश्चन, समीर जी, ये मेरा नहीं, पब्लिक क्वेश्चन पूछना चाहती है कि जिस तरीके से न्याय संगत आप काम कर रहे हो, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, कि क्या और जो भी लोग, समीर जी, जो भी नाम आगे आएंगे, आप बिल्कुल निसंकोच करके बिना डरे, भले कोई भी बॉलीवुड का व्यक्ति, उसकी तरफ जाएंगे, या कोई भी होगा? हम लोग एनसीबी इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ कॉम्पिटेंट एजेंसी। हम लोग टेक्निकली और प्रोफेशनल माध्यम के द्वारा काम करते हैं। कोई भी पक्षपात या प्रेशर में काम नहीं करते। जो कोई भी आएगा सामने, जो कोई भी लॉ इवेटर है, एनडीपीएस एक्ट का वायलेटर है, हम उसके ऊपर एक्शन। मेरे साथ आप समीर वानखेड़े जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू समीर वानखेड़े सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पे मेरे साथ बातचीत करी है। मेरे साथ नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी अमन सिन्हा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शिवसेना के नेशनल स्पोक्सपर्सन, शिवसेना के लीडर संजय गुप्ता जुड़ने वाले। मेरे साथ प्रसिद्ध एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही है। सबसे पहले अमन सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता है कि आप काफी शॉर्ट नोटिस में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सीनियर एडवोकेट अमन सिन्हा जी, लॉ ये कहता है कि एनसीबी ने जो भी कार्रवाई करी है उसके ऊपर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। जब कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया है, 35 पैराग्राफ का ऑर्डर दिया है, जिसमें यह कहा है कि 30 की ये कहा गया है कि इनोसेंट नहीं है प्राइमा फेसी और उनको जेल के अंदर रखना पड़ेगा, और बेल ग्रांट नहीं की। और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि आर्यन की बेल प्ली आज नहीं सुनी जाएगी। तो एक ऑफिसर जो लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहा है, उस पर महाराष्ट्र की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर क्यों निजी हमले कर रहे हैं? अमन सिन्हा जी। प्रदीप जी, ये तो पूरी तरह से गलत है, और बहुत अच्छा किया आपने समीर वानखेड़े जी का जो एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू और उनका वर्जन लिया, क्योंकि इस तरह के पर्सनल अटैक्स होते हैं कई बार अधिकारियों पे, और उन्हें कोई मौका और अवसर भी नहीं मिल पाता उसको रिस्पॉन्ड करने का और रिबट करने का। तो ये आपने और इंडिया न्यूज ने, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि उनका वर्जन भी सामने रखा। और जहां तक इस केस की बात है प्रदीप जी, आपको जानकारी है कि जो स्पेशल एनडीपीएस जज हैं वीवी पाटिल, उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड वेल रीजन्ड ऑर्डर लिखा है। 21 पेज का 35 पैराग्राफ्स का ऑर्डर है जो आपने बताया, और उसमें जो 2-3 प्रमुख बातें उन्होंने कही हैं। सबसे पहला कि आर्यन खान कॉन्शियस पोजीशन में थे, क्योंकि उनके जो साथी हैं अरबाज, उनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी का जो है ड्रग्स वो बरामद हुआ, और उनको उसकी पूरी नॉलेज थी कि वो कहाँ पे स्टोर्ड है, कैसे है,
और एनडीपीएस एक्ट में इसलिए कॉन्शियस पोजेशन का एक एक्ट की स्कीम ऐसी है, वो इस चीज को बताता है। दूसरी ये बात कि उन्होंने स्वयं ही वॉलंटरी स्टेटमेंट जो अपना दिया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग ये आर्यन खान और जो उनके साथी अरबाज हैं वो इसको कंज्यूम करेंगे, जिसको कि बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट किया, पर ये तो ट्रायल का विषय रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है प्रदीप जी कि जो चैट के डिटेल्स और बाकी एविडेंसेस मिले उसमें स्पष्ट दिखता है कि ये एक पूरी कनेक्टेड चेन, एक थ्रेड जा रहा है जो सभी अक्यूज को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टेड चेन की बात कर रहे हैं अमन सिन्हा जी। आपने क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट भी अमन सिन्हा जी, मैं शिवसेना के संजय गुप्ता के पास आना चाह रहा हूं। मैं आने जा रहा हूं शिवसेना के संजय गुप्ता के पास, पर उसके पहले मैं प्रीति पांडे के पास आना चाहता हूं। प्रीति पांडे, आप प्रसिद्ध एक्टिविस्ट हैं, आपने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय में भी काफी भूतपूर्व रूप से अपनी आवाज उठाई थी। समीर वानखेड़े ने कहा था उन पे स्नूपिंग हो रही है। समीर वानखेड़े के ऊपर एलिगेशंस नवाब मलिक ने लगाए जिसके अंदर कोई भी एविडेंस नहीं था। क्यों पर्सनल एलिगेशंस एक ऑनेस्ट ऑफिसर पे लगाए जा रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो कोई भी ऑफिसर, भले कोई सेलिब्रिटी हो, बड़े नेता का बेटा हो, अगर कानूनी उसने गलत किया तो कैसे कार्रवाई होगी? प्रीति पांडे, मुझे समझ नहीं आता का क्या इंटरेस्ट रहता है कि वो कभी किसी, बहुत सारे लोग बहुत बड़े पत्रकार के लिए भी भविष्यवाणी करते हैं, कभी वो सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में कुछ कहते हैं। जब महाराष्ट्र में उनके एक्स कमिश्नर जो है, एक्स पुलिस कमिश्नर है, जब वो भागे भागे भगौड़े की तरफ फिर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कहते। उनका 100 करोड़ का गृह मंत्री वो भागा फिर रहा है, वो चोरों की तरह छिपता फिर रहा है, वो उस बारे में नहीं बोलते। इनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी सिस्टर, वहां तक ये बात करने लगते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे लगता है कि ये इनकी बुद्धि पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और ये इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं हमेशा उनको टारगेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये महाराष्ट्र सरकार का काम था कि अगर नाक के नीचे ड्रग्स बह रही है, नाक के नीचे अगर चरस, गांजा, कोकीन अगर ये बह रही है, इसमें कार्रवाई वहां के गृह मंत्री, वहां के एक्स पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए था। लेकिन आप सब लोगों को पता है, आप तो इसके मुक्त भोग ही रहे हैं कि 1.5 सालों तक इनका टारगेट सिर्फ ये रहा है कि जो देश में सत्यमेव जयते करेगा, जो सच दिखाएगा, ये उसके पीछे पड़ेगा। संजय द्विवेदी जी मेरे पास आ रहे हैं, सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द शिवसेना। अमन सिन्हा जी मेरे साथ बने हैं। संजय द्विवेदी जी की बात सुनिएगा। अमन सिन्हा जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। संजय द्विवेदी जी, मेरे को एक बात बताइए, आपकी जो सरकार है जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, वो एक ऑफिसर जो कानूनी रूप से अपनी काम कर रहा है, उस पर निजी आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के किशोर तिवारी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। आप एक मैटर के अंदर पार्टी क्यों बनना चाह रहे हैं जब एक एजेंसी अपना न्याय संगत काम कर रही है? संजय द्विवेदी जी। प्रदीप भंडारी जी, न्याय संगत आप भी काम कर रहे थे, किसी दूसरे चैनल में थे, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, तो आपने कितना गदर काटा था मुझे बता दीजिए जरा सा एक मिनट। क्या आज आप इस बात कर रहे हैं? 1000 कमरे अगर वहां पे थे, एयरपोर्ट पे 1000 कमरे हैं, तो क्या 2 घंटे में तलाशी हो गई? सब 4 लोगों की तलाशी होनी थी क्या बस सिर्फ वहां पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, जो जिन्होंने भी ऑफिसर पे पर्सनल अटैक्स की बात कर रहा हूं मैं। ड्रग के विरोध में शिवसेना हमेशा रहती है। मैंने कभी हम लोग इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी को फंसाना, किसी के लिए रेड करना, ये गलत होता है। इसमें मैं इसकी बार मैं बुराई करूंगा। संजय द्विवेदी जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े किसी को फंसा रहे हैं जब कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है? ये कोर्ट महाराष्ट्र के अंदर है, एनडीपीएस कोर्ट है। उनकी फैमिलीज के ऊपर निजी आरोप लगाना, उनकी फैमिली को क्यों ड्रैग किया जा रहा है? भंडारी जी, जिससे सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया था, आपको याद है कि आप इस पे बात करिए ना, थ्योरी ऑफ डिफ्लेक्शन क्यों जा रहे हैं? अब नहीं, आपको क्या लगता है भाई कि बदनाम करने तो कोई बदनाम होता है क्या? कौन बदनाम कर रहा है? विकास अघाड़ी सरकार बनी है, महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है, किस लिए बनी है? वहां के विकास के लिए बनी है। क्या पूरे देश में टैक्स नहीं है? अभी गुजरात कितना टैक्स पकड़ा गया? वो है अमन सिन्हा, आपने पूछा तभी एनआईए की जांच हो रही है। पूछा संजय जी, तभी एनआईए की जांच हो रही है। नहीं, आप बताइए ना मुझको। एनआईए की जांच तभी हो रही है, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें कि आपने पूछा सरकार से? बिल्कुल आप नहीं आए थे उस वक्त, कोई और आया था। बृजमोहन श्रीवास्तव जी आए थे उस दिन, एनसीपी के बृजमोहन श्रीवास्तव जी आए थे, पूछा था, आप उनसे पूछिएगा। अमन सिन्हा, मेरी बात सुनिए, ये कह रहे बदनामी, मैं कह रहा हूं कोर्ट का ऑर्डर है। क्या कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं मान रहे? कोर्ट के ऑर्डर के अंदर पैरा नंबर 35 में लिखा है कि प्राइमा फेसी आर्यन जो है वो मासूम नहीं है। वो सब भी बात चढ़िए, मुझे बताइए, कैबिनेट मंत्री एक ऑफिसर के ऊपर निजी आरोप, उसकी फैमिली के ऊपर निजी आरोप किस तरीके से लगा सकता है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। नवाब मलिक की इस केस में स्टेक क्या है? वो सिर्फ आर्यन खान की क्यों बात कर रहा है? अरबाज मर्चेंट की बात क्यों नहीं कर रहा? मुनमुन दमेचा की बात क्यों नहीं कर रहा? ये मेरा बात है।
है, और पूरे अगर पढ़ेंगे तो को एक्यूज उसके साथ में 2 है, सिंगल एक्यूज नहीं है। अमन सिन्हा, बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रदीप जी, और इसीलिए तथ्यहीन और बिना किसी लॉजिक के बात करने का कोई अर्थ नहीं है। इन्हें लगता है कि इतनी गंभीर बात है इनके पास, तो ये जाएं और उस बात को रखते वो जो है स्पेशल कोर्ट में। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो खाली बेबुनियाद आरोप लगा देना, कोई मंत्री इनके लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। अरे भाई, लीगल जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, उसमें आप होते कौन है उसमें इंटरफेयर करने वाले? और अगर आपको करना है, उसकी कानूनी प्रक्रिया है, अगर आपको इतना ज्यादा संकट है तो आप करिए। और गवर्नमेंट जो है, मुझे पता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्यों एक क्रिमिनल मैटर है जिसमें एक अक्यूज्ड है और एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कूद के क्या करना चाहती है। और जहां तक ये जो श्रीमान जी हमारे बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल गए, हालांकि मैटर से रिलेटेड तो कुछ नहीं कहा। अगर वो जजमेंट पढ़ लेते तो शायद इतना नहीं। संजय द्विवेदी जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमन जी देखिए, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं। संजय द्विवेदी जी देखिए, निजी रूप में आपकी काफी इज्जत करता हूं, पर मैं आपसे बात ये सीधी जानना चाहता हूं। आज आप खुल के बोलिएगा, फैक्चुअली बोलिएगा। आप समीर वानखेड़े के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? एक ऑफिसर लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहा है, एनडीपीएस एक्ट को फॉलो कर रहा है, जिसको कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर, एनडीपीएस कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर अपील किया है। आप एक ऑफिसर के ऊपर, वो आपके शिवसेना के लीडर के पास तो नहीं जा रहा, एनसीपी के लीडर को तो अटैक नहीं कर रहा, कांग्रेस के लीडर को अटैक नहीं कर रहा, बीजेपी के नहीं कर रहा, वो न्याय संगत काम कर रहा है जिसके अंदर तेरा एक्यूज है। पर्सनल एनिमी क्यों बना रहे हैं आप? पर्सनल एनिमी क्यों बना रहे हैं? बोलिए। मैं बहुत स्पष्ट आपकी बात जवाब। सुशांत सिंह राजपूत केस से कितने लोगों को पकड़ा गया, वो 100 ग्राम 50 ग्राम से पकड़ा गया। आज तक महाराष्ट्र में कोई बड़ी खेप पकड़ी गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बड़ी खेप पकड़ी नहीं गई, क्यों नहीं पकड़ी गई? ये वहां मैटर सीबीआई के पास है। इस ड्रग्स को जैसे गुजरात में पकड़ा गया, इतने करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, तो ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पूरे प्रदेशों में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र की तरफ ही देखना एनसीबी को, ये क्या ये इसमें तो महाराष्ट्र में ड्रग ही चलते रहे। समीर वानखेड़े जी सिर्फ, अरे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा सुनिए, जब डोंगरी के अंदर समीर वानखेड़े ने जब रेड करी थी जहां पे कोई ऑफिसर्स नहीं जानते थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। जब ये रेड अभी से नहीं चल रही, मैं आपको फैक्चुअली बताना चाहता हूं द्विवेदी जी, 3 टाइम्स एफआईआर बढ़ी है इन द पास्ट 3 इयर्स। फिर आपको दिक्कत एक एफआईआर पे क्यों हो रही है? एक एफआईआर पे थे वहां पे 2 घंटे में क्या जांच होगी सबकी? 1000 कमरे थे, 1000 कमरों की जांच 2 घंटे में क्या संभव है? क्या आपने सबको देख लिया? मैं अभी पिछले डिबेट में बैठा था, किसी ने हमसे कहा कि साहब तो कुछ कमरे तलाश किए गए थे, तो कुछ कमरे क्यों तलाश किए गए? भाई आपको 1000 पूरे 1000 पढ़े नहीं, कमरे में 1000 तलाशी लेनी चाहिए। ऑर्डर कितने पैराग्राफ्स का है? जी और अमन सिन्हा जी, लेने के बाद जी देखिए संजय जी, देखिए आप जो भी तर्क दे रहे हैं वो सबके सब कोर्ट के अंदर रखे गए थे। देखिए अमन सिन्हा जी, जो संजय जी मैं कह रहा हूं, ये सबके सब कोर्ट जो तर्क ये दे रहे हैं, अमन सिन्हा जी आप सीनियर एडवोकेट भी है, जानते हैं सबके सब तर्क कोर्ट के अंदर रखे गए थे। मैं कह रहा हूं कोई भी तर्क है, कोर्ट ने अल्टीमेटली अपना ऑर्डर दे दिया है, द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी फॉलोड। ये जो भी मान लीजिए ऑर्डर हो, पर एक एनसीबी के ऑफिसर को अपना पर्सनल एनिमी बनाने के पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता हूं। उन पे झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जब मैटर सब जुडिस था, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया, अभी तक आर्यन जेल के अंदर है। बॉम्बे हाईकोर्ट की बात की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी आज नहीं एप्लीकेशन को हियर किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एप्लीकेशन को ट्यूसडे हियर किया। अब ये बॉम्बे हाईकोर्ट में भी आरोप लगाएंगे? नहीं मैंने नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉबी की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लॉबी की बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए अमन सिन्हा जी। प्रदीप जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि कोर्ट ने बहुत ही वेल कंसिडर्ड जो है जजमेंट दिया है, सभी पहलुओं को कंसिडर किया है और उसके बाद सब कुछ कंसिडर करते हुए कहा है, क्योंकि उनके जो कनेक्शन है, जो तार हैं, कई कुछ इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं, इस तरह का एविडेंस कोर्ट के सामने आया है। जब इस तरह की बात है, जैसा शोभिक चक्रवर्ती के केस में हुआ और नवाज खान के भी केस में हुआ, तो खाली कंजम्पशन या रिकवरी वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर प्रोक्योरमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बेल को अभी रिजेक्ट किया, वो जाए हाई कोर्ट में उसकी बेल। मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए द्विवेदी जी आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज, जी बोलिए अमन जी, 10 सेकंड फिर मैं संजय जी के पास। वो कई इधर उधर की बातें कर रहे हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने कर दी है इसलिए मैं बता देता हूं। जैसा आप भी बता रहे थे, जो गुजरात में रिकवरी हुई वो वहां पे एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
जितने लोग थे सबको अरेस्ट किया जा चुका है, किसी को कहीं कोई बेल नहीं मिली है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो होगा दूध का दूध पानी का पानी। मैं यही कह रहा हूं, मैं संजय जी के पास बिल्कुल, अमन जी देखिए, संजय जी मेरी बात सुनिए, स्पष्टीकरण रूप में अमन जी मैं आ रहा हूं। देखिए संजय जी, मैं आपसे लॉजिकली जानना चाहता हूं, मेरे को सीरियसली थे, सीधा मैं बोलूंगा, आपकी समीर वानखेड़े से दिक्कत क्या है, आपकी एनसीबी से दिक्कत क्या है, समीर वानखेड़े से दिक्कत क्या है? ये प्रेस नोट एनसीबी ने दिया, सभी आपके एलिगेशंस को गलत करते हुए, समीर वानखेड़े से आपकी दिक्कत क्या है, बताइए। देखिए, मैं समीर वानखेड़े एनसीबी से किसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ईडी की दिक्कत किसी को, ना सीबीआई को। नवाब मलिक जी को तो है ना कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक, सीबीआई से लेकर जो भी एजेंसियां हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए बहुत स्पष्ट, भंडारी जी आप जाइए 7 साल पहले जाइए, जो भी कार्रवाई, चाहे इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, चाहे ईडी कार्रवाई हो, वो हर विपक्ष पक्ष सब पे होती थी। लेकिन पिछले आप 7 सालों में देख लीजिए, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, चाहे ईडी कार्रवाई चल रही हो, चाहे सीबीआई कार्रवाई चल रही हो, चाहे एनसीबी कार्रवाई चल रही हो, एनसीबी सबसे ज्यादा अगर मजबूत है और सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है तो महाराष्ट्र में हो रही है। तो जब बॉलीवुड महाराष्ट्र के अंदर है संजय द्विवेदी जी, तो अभी एक सेकंड संजय द्विवेदी, देखिए लॉजिक में फैक्चुअली मैं बात कह रहा हूं। देखिए अमन सिन्हा जी, सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत के बाद से बराबर ये कहा जा रहा था कि और बड़े पेडलर पकड़े जाएंगे, जो माने अमन सिन्हा जी ने भी बात कही, ड्रग्स रखना, ड्रग्स बेचना, दोनों में अंतर। अच्छा। जो बड़े बेचने वाले पेडलर है, वो कितने महाराष्ट्र में पकड़े गए? बिल्कुल, मुझे 3 टाइम्स एफआईआर हुई है। अमन सिन्हा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा संजय द्विवेदी जी, मैं फैक्चुअली कहना चाहता हूं, जब से बात हुई है 3 गुना एफआईआर हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। एनसीबी का कन्विक्शन रेट 78% है, जो किसी भी दूसरी वर्ल्ड की एजेंसी से कंपैरेटिवली ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ जो ड्रग डीलिंग भी बात करते हैं। अब इनने बात करी महाराष्ट्र की, लॉजिक ये कहता है कि सबसे बड़ी जो मुंद्रा पोर्ट हुआ था, मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर था, वहां भी सेंट्रल एजेंसी डीआरआई ने काम किया था। बिल्कुल। तो इस सब में पर ऑफिसर्स पे पर्सनल एलिगेशन क्यों? ऑफिसर्स पे पर्सनल एलिगेशन क्यों? प्रदीप जी, और एक और बात जोड़ दूं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य दिया जो पूरी तरीके से इस आर्गुमेंट को डिसमिस करता है, पर इसमें स्वयं अभी मैंने देखा एक इनकी नेत्री जो है शिवसेना की, जो नई शिवसेना की बनी है, वो आके बोल रही थी कि हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का भी एक जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और हमने इतने की रिकवरी की है। तो अब ये इस तरह की जो है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ डिफीटिस्ट बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हो रही, फिर कह रहे हैं कि सारी रिकवरी यहीं पे हो रही है। तो ये पहले तय कर लें कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। समस्या ये है कि जब कोर्ट ने एक जुडिशियल लीगल प्रोसेस से अपना ऑर्डर दे दिया, अगर आपके पास इतने गंभीर तथ्य हैं कहने के लिए, आप जाके वहां पे बोल दीजिए, कोर्ट को वहां पे अप्राइज करिए। कोई गया नहीं, खाली यहां बैठे बैठे आप प्रेस स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। हमने 2 बाइट दे दी, चीज पूछना चाह रहा हूं, बिल्कुल अमन जी, क्योंकि वो सारा बेबुनियाद है। अगर कहीं बुनियाद होती तो कोर्ट में जाता, जो डिफेंस काउंसिल होते वो किसी बात को मैं चाहता हूं अमन जी आपसे डिसएग्री करना, पर आपको मैं बोलूं अमन जी, मैं चाहता हूं आपसे डिसएग्री करना, पर फैक्चुअली इस पॉइंट पे मैं डिसएग्री नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि फैक्चुअली संजय द्विवेदी जी मेरी बात सुनिए, संजय द्विवेदी जी मेरे को सीधा जवाब दीजिए, नवाब मलिक एक ऑफिसर पर पर्सनल एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं जिसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है? उनकी फैमिली को क्यों ड्रैग किया जा रहा है? आप पॉलिटिक्स के अंदर है, कोई आपकी फैमिली को ड्रैग करेगा? क्या ये न्याय संगत है? क्या ये सही है? एथिकल कैसे है ये? क्या मॉरल है ये? नहीं भंडारी जी, मैं शिवसेना का नेता हूं। एनसीपी में माननीय नवाब मलिक जी क्या कह रहे हैं ये आप सब उनसे पूछ सकते हैं, क्यों कह रहे हैं, वो अच्छा जवाब दे देंगे। लेकिन मैं एक बात बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ कि 1000 कमरे थे, उसमें 4 कमरों 10 कमरों तलाशी क्यों हुई? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने 1000 कमरे की तलाशी क्यों नहीं ली गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ अमन जी आपके माध्यम से, अमन जी क्यों नहीं ली गई? क्या आपको मालूम था सब लोग जो बिना इसके वहां पे हैं? अमन जी देखिए, जब दिक्कतें सब आती हैं, ये 1000 कमरे वाला आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुना था। अमन जी 10 सेकंड। प्रदीप जी, स्पेसिफिक जो है इनपुट था, रिपोर्ट थी कि ये कार्टेल चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन थी और जिसका एविडेंस मिला, वहां पे उन लोगों की निशानदेही करके, और उसके बाद क्योंकि उसके पीछे स्पेसिफिक जो है इनपुट था कि ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कार्टेल चल रहा है, तो अब इसमें कहना कि नहीं साहब
आपने पूरा जी। उसको पूरा बंबई को क्यों नहीं तलाशा? इन सब चीजों का क्या तथ्य है? मेरे अरे पास investigation चल रही है। अमन जी मैंने समय दिया। प्रीति जी मैं माफी चाह रहा हूं। प्रीति जी मैं माफी चाह रहा हूं। आप बोलना चाह रही थी, पर इस वक्त मेरे साथ जैस्मीन वानखेड़े भी जुड़ने वाली हैं। आप सब, मैं जैस्मीन वानखेड़े जी, मैं देश इस वक्त इस पूरे मुकदमे में समीर वानखेड़े एनसीबी का सपोर्ट कर रहा है और ऑनेस्टी का सपोर्ट कर रहा है। मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, पर इस वक्त देश किस तरीके से न्याय का सपोर्ट कर रहा है जरा देखिए। देश में 50 से 80% न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। दोस्तों मैंने ऑनेस्ट जाबाज ऑफिसर समीर वानखेड़े से बात की थी। पहला इंटरव्यू उन्होंने, सबसे बड़ा इंटरव्यू हमें दिया था और उन्होंने क्लियरली 3 बातें कही। उन्होंने कहा मैं न्याय संगत काम कर रहा हूं, देश के लिए काम कर रहा हूं और मेरे पे लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात उन्होंने करी कि एनसीबी एक टेक्निकल एजेंसी है, प्रोफेशनल एजेंसी है, जो भी वेडर होगा हम उसको लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। और उन्हें कंप्लीटली खारिज कर दिया जितने भी नवाब मलिक के आरोप थे और उन्होंने कहा क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है और सब खारिज कर दिया। ये दुबई वाले जो एलिगेशंस लगाए थे, एक्सक्लूसिव समीर वानखेड़े का इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पे। और अब मेरे साथ जैस्मिन वानखेड़े जी जुड़ रही हैं, समीर वानखेड़े की सिस्टर और खुद एक एडवोकेट है, मेरे साथ जुड़ रही हैं और इन पर आरोप लगाए गए थे नवाब मलिक जी द्वारा। जैस्मिन वानखेड़े जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में जैस्मिन जी, मेरा पहला सवाल यह है, मैंने जब समीर जी से बातचीत करी, इंटरव्यू किया, तो समीर जी ने मुझे थोड़े समय पहले बोला कि जितने भी नवाब मलिक ने आरोप लगाए दुबई की बात, वो कभी सर्विस के बाद दुबई नहीं गए। नवाब मलिक ने कुछ फोटोज दिखाए थे प्रेस को आपके कहते हुए, आप क्या कहना चाहती है इसके बारे में? पहली बात जैस्मिन जी। जैस्मिन जी आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जैस्मिन जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जैस्मिन जी, नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कुछ फोटोज आपके रिलीज किए और उन्होंने कहा कि आप फॉरेन गई थी समीर वानखेड़े के साथ में और उन्होंने दुबई की भी पिक्चर्स रिलीज की थी। आप इस पे क्या कहना चाहती? मैं इस पे कहना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने फ़ोटोज़ रिलीज़ की है तो उसका एविडेंस मुझे दीजिए, उसके डेट पीरियड देखिए। वो बिल्कुल मैं अकेले गई थी, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी और अगर पर्सनली अगर मैं एक एडवोकेट हूँ और अगर मैं 3 दिन अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करती हूँ बहुत काम के बाद, तो और आप प्रूफ दीजिए। हम जो भी ये बोल रहे हैं नवाब मलिक जी बेतुके से सवाल और जवाब कर रहे हैं, तो आप प्रूफ के साथ बात कीजिए, आप डेट के साथ बात कीजिए, या जो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, इनकी जो रिसर्च टीम है निहायती बेवकूफ़ है, निहायती दिमाग नहीं है उनमें, जो ऐसे सवाल और जवाब हमें कर रहे हैं और बोल रहे हैं और किसी एक औरत को खींच रहे हैं मामले में जिसका उसे दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। मैं कहना चाहता हूं जैस्मिन जी कि ये आप पे पर्सनल एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक द्वारा? मैंने नवाब मलिक जी को ओपन कहा था कि आइए मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जब वो इस पूरे के पूरे ड्रग मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो आप पे क्यों एलिगेशंस लगा रहे हैं? वो आपको क्यों इस केस पे ड्रैग कर रहे हैं? नहीं, वो मर्दों में नहीं बैठते जी। मैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मर्दों में बैठना पसंद नहीं करते। वो एक जिसके ऊपर एलिगेशंस आप लगा रहे हो वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और एक ऑनेस्ट ऑफिसर से हर कोई को तकलीफ होती है, तो एक अच्छा काम करते हुए उनको तकलीफ हो रही है और औरतों को खींचने का काम वो कर रहे हैं। उनको कुछ और नहीं मिल रहा है तो बहनों को आप जाके उनकी इंस्टाग्राम और उनकी फेसबुक और उनको ऑनलाइन ढूंढो, उनके डिफरेंट डेटेड पीरियड 2-1.5 साल पहले की फोटोज निकालो, 4 साल पहले की फोटोज निकालो,
6 साल पहले की फोटोज निकालो और अब सब एक में मिला के उसको ट्विस्ट करके आप सामने रख दो और पब्लिक को समझो ये बेवकूफ है, जैसे मेरी बात मानती है सब मान लेगी। तो आप एविडेंसेस कम आउट विद सम एविडेंसेस, पुख्ता सबूतों के साथ आइए और फिर सबको बताइए। एक रॉन्ग जो पब्लिक को आप नोटेशंस कर रहे हो, आप बुला रहे हो, आप बोल रहे हो पब्लिक को, ये एक गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक औरत को टारगेट कर रहे हो क्योंकि उसका भाई सच्चाई से काम कर रहा है और आप अभी एलिगेशंस लगा रहे हो, नए नए एलिगेशंस आप सोच सोच के लगाते हो, पता नहीं आपको दिमाग किसने की। प्लीज चेंज योर हुएवर योर काउंसिल इज, माय पर्सनल एडवाइस टू यू इज। लेकिन आप जो भी ये सब चीजें कर रहे हो दिमाग से काम कीजिए, डेट पीरियड देखिए। मैंने अपना सोशल नेटवर्क आपके लिए खास खुला रखा है कि आप और जाइए और पीछे जाइए और आप औरतों को बदनाम कीजिए और आप औरतों को खींचिए इस मामले में, क्योंकि आपसे मर्दों से तो बात होगी नहीं। तो बेसिकली आप और औरतों को लीजिए और औरतों को खींचिए और हमारी माँ बहन बेटियों को लेकर आइए पब्लिक में। हम लड़ेंगे, हम देश सेवा तो करते ही हैं, हम लड़ेंगे। आई एम अ लॉयर, मैं तो वैसे ही लड़ती हूँ, मेरा तो दुर्गा एनजीओ है, वैसे ही हम लड़ते हैं। आपका हर एक जवाब देंगे, आप हर एक, हम सच्चे लोग हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम बिल्कुल साफ है। हाँ हम आप जो हम आपको और बात ये होती है ना कि हम आपको क्लैरिफिकेशन दे कौन। अगर हम जाएंगे कोर्ट में, हम जज साहब को देखेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमको संविधान है, सबको राइट्स है। आई यू हैव इन्फ्रिंज्ड माय राइट्स, you have gone against my right, you have taken my photo without my permission. This तो is illegal. Jasmine जी, और हमको जो taking a woman's picture without her permission is illegal. It is, Jasmine जी, taking a women's picture, महिला की फोटो लेना उसकी परमिशन के बिना इलीगल है। नवाब मलिक ने इलीगल काम किया है, अनएथिकल काम किया है, इमोरल काम किया है। क्या आप इसके लिए कोर्ट पे जाएंगी? जी, उन्होंने एक बहुत ही इलीगल काम किया है और आप एक एडवोकेट को और एक एडवोकेट को डॉन बोल के बुला रहे हो। यू आर टार्निशिंग माई इमेज इन द सोसाइटी। कल मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और एक कॉल अपॉन, अच्छा हुआ इस माध्यम के थ्रू मैं हर एक वकील को आवाज देती हूं, मैं एक हर महिला मंडल को आवाज देती हूं, मैं एक हर नारी जो लड़ती है, जो एक जुल्म के खिलाफ लड़ती है, मैं उसको आवाज देती हूं कि आप ये मुहिम में मेरे साथ खड़े होइए। क्योंकि यहाँ एक औरत को जो लड़ती है, जो चुप नहीं रहती, जो सच्चाई के खिलाफ बोलती है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके ऑनेस्ट ब्रदर को टारगेट किया जा रहा है। तो आप खड़े रहिए, आप लेडीज एडवोकेट टीम जिसको डॉन बोला जा रहा है, तो ये डॉन वर्ड पे जैस्मिन जी, उन्होंने एक चीज मैं इस पे आना चाहता हूं। जैस्मिन जी मेरी एक सेकंड, जैस्मिन जी माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। जैस्मिन जी झूठे विदाउट एनी एविडेंसेस। जैस्मिन जी वो फ्लेचर पटेल की बात कर रहे हैं, उसके साथ आपकी फोटो इंस्टाग्राम वाली दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये, वो सिस्टर इन लॉ पे भी अटैक कर रहे हैं। मैंने एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो न्याय संगत अपना काम कर रहा है, जिसपे कोर्ट ने भी अपनी वर्डिक्ट सुनाई है, उसकी फैमिली को ड्रैग करने की इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। आप मालदीव्स की बात होती है, दुबई की बात होती है, डॉन किया जाता है, ये सब पब्लिक फोटोज पे। क्या आप कोर्ट जाना सही नहीं रहेगा इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट? बिल्कुल सही रहेगा। मैं मालदीव्स मेरी फैमिली के साथ गई थी। मैं मालदीव्स गई थी 3 दिन के लिए वेकेशन पे। मैं दुबई मेरी फ्रेंड की वेडिंग में गई थी। अब इसको और कौन से सालों में ये किया गया, जो फोटोज दर्शा रहे हो आप, मलिक जी टाइम और डेट तो देख लीजिए, आपके कॉरेंस और एनालिटिक को बोलिए जो भी कर रहे हैं ये काम। और असल में आपको कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ मिल नहीं रहा है ना, तो आप उनकी बहू, बेटियां, औरतों को ही लाओगे आप बीच में, क्योंकि आपको अभी आपके जो आपके घरों में है, आपके घरों में शायद संस्कार दिए नहीं गए हैं कि कोई भी ड्रग पी लेता है, कोई भी पोजेशन रखता है। तो आपको मेरे ख्याल से तो आपके पास कल्चर वैल्यूज होंगे नहीं, मॉरल साइंस के क्लासेस में तो आप गए नहीं होंगे, एजुकेशन तो दूर की बात है। तो आपको औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं आप सुनी हुई है, लेकिन हम लोग वी कैन नॉट स्टूप टू दैट लेवल कि हम लोग बोले ये सब। लेकिन औरतों की इज्जत करना सीखे और इस माध्यम के थ्रू मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक औरत प्लीज खड़े रहिए, क्योंकि यहाँ कभी डॉन बोला जा रहा है ऑनेस्ट ऑफिसर की बहन को, कभी उस भाभी को बोला जा रहा है कुछ। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक ड्रग इरेडिकेशन हो रही है, गलत काम को रुकाया जा रहा है, इसीलिए सब तड़प गए। ये लोग कहाँ थे? ये लोग जब कहाँ थे जब इतनी बड़ी एक रेड की गई डोंगरी में, जब इतनी बड़ी रेड की गई गुंडों में, जब उन पे अटैक किया गया, तब नवाब मलिक जी ने नहीं बोला। तब तो उन्होंने आके कोई फेलिसिटेशन या मुबारकबाद भी नहीं बोली।
जब हमने जान पर हमारी चीजों को और हमने खेला है तब आपने तो नहीं बोला। बट ये आप एक किसी बहन का फोटो उठाकर, आप किसी औरत का प्राइवेट फोटो उठाकर आप उसको ट्वीट करते हो, आप उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर आते हो। आप जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैं तो नहीं करूंगी आपके साथ। जैस्मिन जी, मेरी पर्सनली मैं समीर वानखेड़े जी की काफी इज्जत करता हूं, क्योंकि जितना मैंने जर्नलिज्म किया और इस केस को फॉलो किया है, सुशांत के केस को फॉलो किया है, बिल्कुल ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं। पर जब मैंने आपकी सिस्टर इन लॉ का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि समीर इज गिवन हिज एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री, ही डज नॉट हैव हिज टाइम इवन फॉर हिज फैमिली। आप मुझे बताइए कि इस वक्त जब समीर वानखेड़े क्या अंडरगो कर रहे होंगे? बोलिए। ही डज नॉट हैव टाइम फॉर जी। वो वो एक स्ट्रांग है, वो एक स्ट्रांग इंसान है और कहीं ना कहीं, लेकिन बहन की तरह मुझे वो आधे से ज्यादा पब्लिक को सबको पता है, कॉमन मैन हैज अ वेरी बिग पावर। एक आम आदमी में बहुत अकल होती है, एक आज आदमी में बहुत हिम्मत होती है। सबको पता है सच क्या है, सबको पता है। आप समीर वानखेड़े का कुछ नहीं कर सकते तो आप बहन और उनकी बेटियों को टारगेट करोगे, आप उनको तो रुका तो नहीं सकते, तो आप इस तरीके से उनकी बहन बेटियों को लाओगे। एक आदमी, एक इंसान को जिसके अंदर सभ्यता होगी, उनको खड़ा कीजिए, कीर के पूछिए कि क्या आप अपनी माँ बेटियों को चीजों के अंदर खींचोगे? आप अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो तो आप एविडेंसेस क्यों नहीं लेकर आते? आपके पास एविडेंसेस है मेरे मालदीव्स के फोटो, आपके पास एविडेंसेस है मेरे फोटोज जो आपको पता भी नहीं है कि दुबई में लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। आप पहले उसका तो बताओ, वो बॉम्बे के फोटोज है और कौन से साल और कब के हैं। आपके पास यही एविडेंसेस मिले एक ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ? उसकी बहन के फोटोज आप लेकर जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप जाके कहीं और अपलोड करते हो और कुछ और ट्विस्ट लेके कहानी करते हो। आप कहाँ, मतलब मैं एक मांग करती हूँ इंडियन पब्लिक से कि प्लीज उठिए इस चीज के ऊपर। जैस्मिन जी, पूरा इंडियन पब्लिक आपके साथ में, अगर हम निर्भया के बारे में नहीं बात करते, जैस्मिन अगर जी, वो पूरा का पूरा इंडियन पब्लिक ये नशेड़ी गंजेड़ी चर्सी जो लॉबी है उसके अगेंस्ट है, ये आप भी देख रही होंगी ग्राउंड पे। मेरा सवाल जैस्मिन जी, देखिए, पर मुझे इस बात का दुख होता है कि जब एक ऑनेस्ट ऑफिसर जिसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ अपना कानूनी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर इतने ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं। एज अ सिस्टर, एज समीर वानखेड़े बहन, आपको क्या लगता है उनके दिमाग में क्या जाता होगा? बिकॉज ये उनको मॉरली वीक करने की और एनसीबी को मॉरली वीक करने की कोशिश है। और क्या आपको नवाब मलिक के इस पूरे इससे डर लगता है? सत्य में विजयते, सत्य में विजयते। हमें तकलीफ होती है ये सुनकर कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और उन एलिगेशंस को हम कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि सच की जीत होती है। सत्य में विजयते। हमें पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप, हम बहनों और बेटियां, हम तैयार होते हैं। आपको पता है ना, कभी जमाने में जब पता है कि मर्दों पर जब वॉर होता था, जब जंग होती थी, तब उनकी औरतें तैयार होती थी, तो हम भी तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कही है जैस्मिन जी, आप तैयार है क्योंकि आपके साथ में सच है। जैस्मिन जी, आपके साथ सच है और मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि मैं भी सच के साथ खड़ा हूं। पूरी देश की जनता सच के साथ खड़ी है। आप सच के साथ रहें और न्याय संगत करते रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैस्मिन जी, मेरे साथ आप जुड़ी, देश आपके साथ है। जैस्मिन वानखेड़े मेरे साथ जुड़ी। दोस्तों, जाते जाते जनता की आवाज क्या है? मेरे साथ गोपाल जी जो जनता के पैनलिस्ट है, 1000 एप्लीकेशन से वो आए और हमारे शो को बहुत देखते हैं। गोपाल जी, मेरे पास 30 सेकंड है। जनता क्या समीर वानखेड़े के साथ है? जनता क्या नशेड़ी गंजेड़ी चरसी लॉबी के खिलाफ है? गोपाल जी। सर, जनता बिल्कुल समीर वानखेड़े जी के साथ है और ये बॉलीवुड के नशेड़ी जो हैं, गंजेरी जो है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जो है, जो उनको पहले डिफेंड कर रहे थे कि 23 साल का बच्चा है, बच्चे को परेशान कर रहे हैं समीर वानखेड़े। उनको ये पता होना चाहिए कि 23 साल की उम्र हमारे नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है। और समीर वानखेड़े पे ये पर्सनल एलिगेशन इसलिए लगा रहे हैं नवाब मलिक जी, क्योंकि बिल्कुल समीर वानखेड़े जो दामाद है इनके नवाब मलिक के, समीर खान, उनको भी इन्होंने अरेस्ट किया था ड्रग्स के केस में ही, इसीलिए इन पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप किधर के रहने वाले हैं? आप कहां रहते हैं? मैं सर यही दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में रहते हैं जी। चलिए, मेरे साथ आप जुड़े। दोस्तों, दिल्ली से जनता, भागलपुर से जनता, हर देश की जनता की सिर्फ एक की आवाज, नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग के खिलाफ देश साथ में खड़ा है और ऑनेस्ट ऑफिसर्स को टारगेट करना देश हित में नहीं है और हमारी आवाज देश हित की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, शुक्रिया। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।